معزز و مکرم حاضرین جمع، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و شتائش اللہ رب العالمین کی لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام نازل احمد مجتبی خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مقدس پر، جن پر اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب کلام مجید کو نازل فرما کر اپنی اس دین مقدسہ کی تکمیل فرمائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، میں نے آپ حضرات کے سامنے گزشتہ اور پیوستہ جمعہ کو انسانی زندگی پر گناہوں کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس تعلق سے کچھ باتیں رکھی تھیں۔ انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں اسی موضوع کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ زخرف کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ان افراد کا تذکرہ کیا جو لوگ اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، یعنی انسانی زندگی پر گناہوں کا ایک اثر یہ بھی پڑتا ہے کہ جب انسان گناہ پر گناہ کرتا ہے، معصیت پر معصیت کرتے جاتا ہے، تو شیطان کا وہ قیدی بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس بندے کو شیطان کے حوالے کر دیتا ہے، وہ شیطان کا قیدی بن جاتا ہے۔ شیطان اسے پوری طرح سے اپنے چنگل میں جکڑ لیتا ہے۔ یہ گناہ کا بہت ہی خطرناک اثر ہے۔ انسان جب گناہوں پہ گناہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، پوری طریقے سے وہ گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، تو اس پر شیطان کا یعنی شیطان اسے اپنے قابو میں لے لیتا ہے۔ پورا کنٹرول شیطان کا اس انسان پر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَعِشْ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو لوگ رحمان کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، رحمان کے ذکر سے جو لوگ منہ موڑتے ہیں، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، تو ہم اسے شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں، ہم انہیں شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں، شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ شیطان کا قریب ترین ساتھی بن جاتا ہے۔ یعنی جو انسان رحمان کے ذکر سے غافل، رحمان کے ذکر سے غافل کا مطلب کیا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کے دین سے کوئی منہ موڑ لے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے کوئی اعراض کرے، شریعت نے جو دین نازل کیا، جو احکامات شریعت نے اللہ رب العالمین نے نازل کی، شریعت کی روشنی میں اگر کوئی ان احکامات پر عمل نہ کرے، ان احکامات سے اعراض کرے، گویا ایسا شخص رحمان سے اعراض کر رہا ہے، اللہ رب العالمین سے منہ موڑ رہا ہے۔ اب جو بندہ اللہ تعالیٰ سے منہ موڑے، اللہ تعالیٰ سے اعراض کرے، تو شیطان کے شکنجے میں پہنچ جاتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور قول ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ہمیں چاہیے، انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی بندگی کرے، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لگائے۔ انسانوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کھپا دے، اور اگر انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ موڑے گا، اللہ تعالیٰ کی بندگی سے اعراض کرے گا، تو شیطان کی گود میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انسان کے لیے عمل بہت ضروری ہے، انسان کے لیے عمل بہت ضروری ہے۔ انسان اچھا عمل کرے یا برا عمل کرے، اگر انسان اچھا عمل کرے گا، نیک عمل کرے گا، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرے گا،
रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलेगा तो शैतान के मकरो फरेब से बच जाएगा, शयातीन के शर से वो बच जाएगा, शयातीन के फितने से वो बच जाएगा। लेकिन अगर वही इंसान बुरा अमल करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत से मुंह मोड़े, रसूल की फरमाबरदारी से एराज करे, तो शैतान उसे अपने काम पर लगा देता है। यानी शैतान जो चाहता है इंसान वो कुछ कर बैठता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इंसान गुनाहों पर गुनाह करता है तो शैतान का कैदी बनता है, शैतान के चुंगल में फंस जाता है और शैतान उस इंसान को अपने काम पर लगा देता है। इसी तरीके से आप देखिए, इंसान जब गुनाह करता है, इंसान की जात से जब कोई गुनाह सरजद होता है तो इंसान लज्जते बंदगी से महरूम हो जाता है। लज्जते बंदगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत, अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमाबरदारी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रियाजत, यानी ऐसा इंसान अल्लाह ताला की इताअत की लज्जत से महरूम हो जाता है। बंदगी करने की एक लज्जत होती है, इबादत की एक मिठास होती है, नमाज की एक मिठास होती है, रोजे की एक लज्जत होती है। अगर बंदा गुनाह पर गुनाह करता है तो बंदगी की जो लज्जत होती है, इबादत की जो मिठास होती है, वो इंसान के दिल से निकल जाती है। इंसान लज्जत बंदगी से महरूम हो जाता है, या यूं कहिए इंसान के दिल से नेकी की मोहब्बत निकल जाती है। इंसान का दिल नेकियों की तरफ रागिब नहीं होता, इंसान का दिल खैरो भलाई की तरफ मायल नहीं होता। यानी इंसान इतना गुनाह करता है, गुनाह का इतना रसिया हो जाता है कि इंसान के दिल में खैर की जगह बाकी नहीं रहती। यानी इंसान अपने दिल में गुनाहों को इतनी जगह दे देता है, गुनाहों से इतनी मोहब्बत करता है, गुनाहों का इतना आशिक हो जाता है, उसके दिल में खैर का जज्बा बाकी नहीं रहता, उसका दिल कभी नेकी की तरफ मायल नहीं होता। और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का ये मफ़हूम है, इंसान के दिल में कभी भी अच्छाई और बुराई एक जगह जमा नहीं हो सकती। इंसान के दिल में अच्छाई और बुराई एक साथ नहीं आ सकती। इंसान के दिल में नेकी और गुनाह एक साथ नहीं आ सकता। यानी जो इंसान गुनाह पे गुनाह करता है, उसका दिल जब गुनाहों से भर जाता है तो ऐसे इंसान के दिल में नेकी का जज्बा नहीं आता, नेकी का जज्बा नहीं आता, उसका दिल नेकी की तरफ माइल नहीं होता। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस बयान करके एक नुक्ता बयान किया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस, मुस्लिम शरीफ के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन सुवरुन फीहि सुवरुन वला कल्बुन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी और बड़ी मशहूर हदीस है कि फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते, फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जहां पर तस्वीरें लटकती हो, जहां पर कुत्ते पाले जाते हो। यानी ऐसे घर में फरिश्तों की एंट्री नहीं होती। फरिश्ते ऐसे घर को भूल जाते, रहमत के फरिश्ते। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जमीन पर रहमत के फरिश्तों को भेजता है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नेक बंदों की हिफाजत करते हैं मसाइब से, बलाओं से। तो रहमत के फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिस घर में तस्वीर लटकी हुई हो या जिस घर में कुत्ता बंधा हुआ हो। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं जाते, जिस घर में तस्वीर हो या कुत्ता हो, तो इल्म जो अल्लाह ताला का नूर है, नेकी, खैर भलाई उस दिल में कैसे दाखिल होगी। कैफ यदखुलुल इल्मु फी क़ल्बिन फीहि किलाबुश शहवात। नेकी के जज्बात, इल्म, नेकी और भलाई के जज्बात उस दिल में कैसे दाखिल होंगे जिस दिल में शहवात के कुत्ते पल रहे हों, जिस दिल में शहवात के कुत्ते पल रहे हों। यानी इंसान गुनाह पर गुनाह इतना करता है उसका दिल बिल्कुल काला हो जाता है और उसके दिल में खैर की जगह बाकी नहीं रहती। इसलिए हमें अपने दिलों को साफ करना है, हमें अपने दिलों को आबाद करना है। हमारा दिल उसी वक्त साफ होगा जब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर में सिद्क़े दिल से गुनाहों से तौबा करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में अगर हम अपने गुनाहों का एतराफ करेंगे, याद रखो कुरान मजीद की तिलावत, इस्तिग़फ़ार,
तौबा ये इंसान के दिलों को सैकल करता है, इंसान के दिलों को साफ सुथरा करता है। अगर हमारा दिल गुनाह कर करके काला हो चुका है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर में तौबा करो, अल्लाह ताला से दुआएं करो। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मुर्दा दिलों को जिला बख्शेगा और अल्लाह ताला हमारे गुनहगार दिलों को पाक कर देगा। अगर हम गुनाहों से तौबा करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे मुर्दा दिलों को अल्लाह ताला आबाद कर देगा। इसी तरीके से इंसानी जिंदगी पर गुनाहों के जहां बहुत सारे असरात मुरतब होते हैं, वहीं पर एक असर ये भी मुरतब होता है कि जब इंसान गुनाह पर गुनाह करता है, गुनाह पर गुनाह करता है, अल्लाह की मासियत और नाफरमानी करता है, तो जिल्लत और पशेमानी ऐसे इंसान का पीछा करती है। यानी जिल्लत और रुसवाई आसी और गुनहगार इंसान का पीछा करती है। सलफ में से किसी का बड़ा मशहूर कौल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का कानून है इस सरजमीन पर, अल्लाह ताला का कानून है कि एक न एक दिन अल्लाह ताला गुनहगार बंदों को लोगों के सामने जलील रुसवा जरूर करेगा। ये अल्लाह ताला का कानून है कि अगर इंसान गुनाह पर गुनाह करे, तौबा न करे, इस्तिग़फ़ार न करे, अपना रब्त अल्लाह ताला से मजबूत न करे, तो अल्लाह ताला ऐसे गुनहगार और आसी बंदों को लोगों के सामने किसी न किसी दिन जरूर जो है रुसवा करेगा, जलील करेगा। आप देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बड़ी मशहूर हदीस इब्न माजा की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इज़ा तबायातुम बिलईना, जब तुम सूदी कारोबार करने लगो, कारोबार के अंदर हलाल और हराम के दरमियान इम्तियाज न करो, हराम तरीके से जब तुम लोग पैसा कमाने लगो, सूदी कारोबार करने लगो, वअख़ज़्तुम अज़नाबल बकर, और जब तुम लोग जो है बकर गाय की दुम को पकड़कर घरों में बैठ जाओ, गाय की दुम को पकड़कर घरों में बैठ जाओ, मतलब क्या है कि तुम तिजारत में अपना दिल पूरे तरीके से लगा दो, वरज़ीतुम बिज़्ज़र्'i, और खेती बाड़ी से तुम राजी हो जाओ, वतरकतुम बिल जिहाद, और अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करना तुम तर्क कर दो, छोड़ दो, सल्लल्लाहु अलैहिम ज़ुल्ला, तो अल्लाह ताला ऐसी कौम पर जिल्लत मुसल्लत करता है, रुसवाई नाजिल कर देता है, और ये जिल्लत उस वक्त तक खत्म नहीं होती। वला तरफउ अनकुम हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम, अगर जिल्लत और रुसवाई से निकलना है तो अल्लाह ताला के दीन की तरफ लौटाओ, अल्लाह ताला के दीन की तरफ लौटाओ। देखिए इस हदीस का मफहूम आप समझिए कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा बेहतरीन पैगाम दिया। इस हदीस के जरिए से अगर इंसान दुनिया को सब कुछ समझ ले, आखिरत को भूल जाए, यानी इंसान अपनी जिंदगी का मकसद बस दुनिया समझे कि अल्लाह ने हमें भेजा है, बस दुनिया कमाना है, दुनिया हासिल करना है, आखिरत को भूल जाए, अपनी आखिरत को भूल जाए, अगर इंसान दुनिया कमाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दे, अपना पूरा वक्त सर्फ कर दे, उसके पास इतना वक्त नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी करे, मस्जिद में आकर अपना माथा टेके, अपने रब को राजी करे, अल्लाह ताला को खुश करे। उसके पास दुनिया कमाने के लिए बहुत सारा वक्त है, लेकिन रब को राजी करने के लिए उसके पास वक्त नहीं है, तो क्या होगा? सल्लल्लाहु अलैहि ज़ुल्ला, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों पर जिल्लत और रुसवाई मुसल्लत कर देता है। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला लोगों के सामने जलील कर देता है, रुसवा कर देता है। एक इंसान रात की तारीकी में गुनाह करता है, लोगों की नजरों से छिपकर गुनाह करता है, वो समझता है कि लोग मुझे नहीं देखते, लेकिन वो ये भूल जाता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर, अल्लाह ताला की नजर उसके ऊपर है, अल्लाह ताला की नजर से नहीं बच सकता। एक इंसान रात की तारीकी में गुनाह करता है, लेकिन जब हद से ज्यादा गुनाह होता है तो एक ना एक दिन अल्लाह ताला दिन के उजाले में लोगों के सामने उसे रुसवा कर देता है, उसे जलील कर देता है। अगर इंसान सिर्फ के दिल से तौबा नहीं करे तो अल्लाह ताला जिल्लत और रुसवाई मुसल्लत करता है ऐसे लोगों पर जो हराम तरीके से माल कमाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करते हैं, गुनाह पर गुनाह करते जाते हैं। और आप देखिए, हम अपना जायजा लें, हम और आप अपना जायजा लें, अपने गरीबानों में झांक कर देखें कि आज हमारी हैसियत क्या है, हमारी वक़्त क्या है। आलमी पैमाने पर देखिए, मुसलमानों को आलमी सतह पर देखिए, आज मुसलमान कौम की क्या हैसियत है, क्या वक़्त है, मुसलमानों की क्या औकात है। आज हम अगियार के हाथों का खिलौना बने हुए हैं, अगियार हमारे दुश्मन हमें जैसे चाहते इस्तेमाल करते हैं और हम खुशी खुशी उनके हाथों इस्तेमाल होते हैं।
और फख्र हमें महसूस होता है, उनके हाथों इस्तेमाल होना में फख्र महसूस होता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की फटकार, अल्लाह ताला की मार, ये अल्लाह ताला की तरफ जिल्लत और रुसवाई नहीं है तो और क्या है। अगर इंसान गुनाह करता है, अपने रब को नाराज कर बैठता है, दीन से मुंह मोड़ लेता है, तो अल्लाह ताला ऐसी कौम के मुकद्दर में जिल्लत रुसवाई लिख देता है। इसी तरीके से गुनाहों का एक असर इंसानी जिंदगी पर बहुत गहरा ये भी पड़ता है कि इंसान की जिंदगी हमेशा खौफ के साए में गुजरती है। इंसान जब जुर्म करता है, इंसान जब गुनाह करता है, इंसान जब अल्लाह ताला की मासियत और नाफरमानी वाले काम करता है, हमेशा उसे खौफ लगा रहता है, बेदारी की हालत में डरता है, नींद की हालत में डरता है, खौफ उसका पीछा नहीं छोड़ती, बेचैन और बेकरारी की जिंदगी गुजारता है। ये गुनाह का बहुत बुरा असर इंसानी जिंदगी पर पड़ता है। अगर हम अमन की जिंदगी चाहते हैं, सुकून की जिंदगी चाहते हैं, करार की जिंदगी चाहते हैं, तो अल्लाह ताला के जिक्र से जुड़ जाओ, गुनाहों से तौबा करो, अल्लाह ताला के जिक्र से जुड़ जाओ। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अगर तुम हकीकी चैन सुकून चाहते हो, जिंदगी की टेंशन से अगर तुम फ्री होना चाहते हो, अगर टेंशन फ्री होना चाहते हो कि हमारी जिंदगी में कोई गम ना हो, इत्मीनान की जिंदगी चाहिए, सुकून की जिंदगी चाहिए, अल्लाह ताला से जुड़ जाओ, अल्लाह ताला के जिक्र से। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। खबरदार, होशियार, अल्लाह ताला के जिक्र से इंसान के दिलों को इत्मीनान मिलता है, इंसान के दिलों को सुकून मिलता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र से अगर अल्लाह ताला का जिक्र करोगे और अपने आप को अल्लाह ताला के जिक्र में लगाओगे, यकीनन दिलों को इत्मीनान और सुकून मिलेगा, इत्मीनान वाली जिंदगी मिलेगी और नफ्सियात के खौफ से बाहर निकल जाओगे। अगर गुनाह पर गुनाह करोगे, वही खौफ तारी होगा, चाहे दिन का उजाला हो या रात की तारीकी हो, हमेशा इंसान जो है खौफ के साए में जिंदगी गुजारेगा, उसे हकीकी अमन सुकून कभी नहीं मिल सकता। इसी तरीके से आप देखिए, गुनाह के असरात बहुत ज्यादा हैं। उन्हीं में से एक असर ये भी पड़ता है, जब इंसान गुनाह करता है, इंसान अल्लाह की नजर से गिर जाता है, इंसान अपनी कदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में खो बैठता है। हर इंसान बड़ा मुकर्रम है, वकर्रमना बनी आदम, हमने आदम की औलाद को बड़ी इज्जत दी। कुरान में अल्लाह ताला ने इंसानियत की अजमत बयान की। हर इंसान बहैसियत इंसान बड़ा अजीम है, हर इंसान बहैसियत इंसान बड़ा मुअज़्ज़ज़, बड़ा मुकर्रम है। लेकिन अगर वही इंसान गुनाह करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, उस इंसान का मकाम, उस इंसान का मर्तबा अल्लाह ताला की नजर से गिर जाता है। एक इंसान का एक मकाम होता है, एक हैसियत होती है, एक उसका रुतबा होता है। इंसान गुनाह करने के बाद अपना रुतबा खो देता। आप देखिए, एक इंसान किसी ऑफिस में काम करता है, किसी कंपनी में काम करता है, जो बड़ा अमानतदार होता है, अमानत के साथ, सदाकत के साथ, सच्चाई के साथ, पूरी दयानतदारी के साथ अगर काम करता है, तो तरक्की के रास्ते उसके खुले होते हैं, वो तरक्की पे तरक्की करता जाता है। लेकिन अगर एक इंसान धोखेधड़ी से काम करता है, खयानत करता है, वक्त को, जो वक्त उसे लगाना चाहिए, वक्त देना चाहिए, वक्त नहीं देता, बल्कि खयानत करता है, तो इंसान एक ना एक दिन आता है, वो लोगों की नजरों से या उस कंपनी में जो वर्कर काम करते हैं उसकी नजरों से गिर जाता है, और जो उसके जिम्मेदार होते हैं उनकी नजरों से भी गिर जाता है। बिल्कुल, अगर इंसान नेकी करता है, खैर के काम करता है, अल्लाह के बताए हुए तरीके पर चलता है, रसूल का बताया हुआ तरीका अपनाता है, सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, इंसान अल्लाह ताला की नजर में बड़ा मुहतरम है, बड़ा मुकर्रम है। लेकिन अगर वही इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता है, तो इंसान अल्लाह की नजर से गिर जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इय्याक वल मासिया, इय्याक वल मासिया, खबरदार, खबरदार गुनाहों से बचो, मासियत से अपने आप को बचाओ। फइन्नल मासियत हल्ल सख्तुल्लाहि अज़्ज़ व जल। क्यों नबी ने कहा मासियत से बचो, गुनाह करने से बचो, नाफरमानी से बचो? क्यों कहा? क्योंकि नाफरमानी, गुनाह, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराजगी को हलाल कर देती है। अल्लाह ताला से बंदे से नाराज हो जाता है। जो इंसान गुनाह करता, सोचो, गौर करो, जिस इंसान को अल्लाह ताला अपनी नजर से गिरा दे, जो इंसान अल्लाह की नजर से गिर जाए, क्या दुनिया में कोई है जो उसे इज्जत दे?
کیا کوئی ہے جو اسے جو ہے اس مقام پر لا بیٹھا ہے؟ نہیں، جو انسان اللہ تعالیٰ کی نظر سے گر جائے، قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرَمٍ، کہ اللہ تعالیٰ جسے ذلیل کر دے، جسے رسوا کر دے، دنیا کا کوئی انسان اسے عزت نہیں دے سکتا۔ تو ایسا انسان گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ اس لیے اگر ہمیں اللہ رب العالمین کی نظروں میں عظیم بننا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، تو ہمیں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، معصیت سے بچانا ہے، نیکی خیر اور بھلائی کے کام کرنے۔ اسی طریقے سے جب انسان گناہ کرتے جاتا ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، گناہ کرتا ہے، اس کا ایک اثر یہ پڑتا ہے کہ انسان کے دل و دماغ پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ صحیح اور غلط کے درمیان انسان جو ہے تفریق نہیں کر پاتا، اس کے لیے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے فرق نہیں کر پاتا، حلال کیا ہے حرام کیا ہے فرق نہیں کر پاتا، اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے فرق نہیں کر پاتا انسان، کیونکہ انسان گناہوں کا اتنا رسیا ہو چکا ہے، اس کے دل و دماغ پر پردہ پڑ چکا۔ آپ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے قوم لوط کا تذکرہ کیا۔ اللہ اکبر، قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اردن میں ایک شہر صدوم نامی بستی کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نبی بنا کر بھیجا۔ لوط علیہ السلام کی قوم لوط، ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا ایک جرم یہ تھا، مشرک قوم کی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والی، رسول کا مذاق اڑانے والی قوم لوط۔ اور ان کا دوسرا جرم کیا تھا؟ اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے یہ لوگ عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس جاتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی تفصیل جو ہے نقل کی قرآن مجید میں قوم لوط کی، کہ قوم لوط جنسی خواہشات، ہم جنس پرستی کے اندر یہ لوگ مبتلا تھے، ہومو سیکس جسے کہا جاتا ہے اس کے اندر ہی مبتلا تھے، یعنی مردوں سے اپنی جنسی خواہشات کو تکمیل کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے فطرت کو الٹ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو برباد کرنے کے لیے، اس قوم کو نشان عبرت بنانے کے لیے فرشتوں کی ایک ٹیم بھیجی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور ملک الموت، یہ تین فرشتے زمین پر آئے۔ پہلے تو یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے بیٹے کی بشارت دینے کے لیے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دینے کے لیے۔ بشارت دینے کے بعد ان فرشتوں نے قوم لوط کا رخ کیا، صدوم نامی بستی کا رخ کیا، اور یہ فرشتے جو آئے بالکل خوبصورت نوجوان کی شکل میں قوم لوط کے پاس پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا ان کے گھر مہمان آئے ہیں، انبیاء مہمان نواز ہوتے ہیں، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کی روش معلوم تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام بڑے غمگین ہوئے، بڑے پریشان ہوئے۔ قرآن کے الفاظ ہیں سِیَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ، حضرت لوط علیہ السلام کا چہرہ اتر گیا، اندر گھٹ رہے تھے حضرت لوط علیہ السلام مہمانوں کو دیکھ کر، کیونکہ وہ جانتے تھے اگر قوم کے لوگوں کو پتا ہوا تو بدکاری کرنے کے لیے قوم کے لوگ میرے گھر چلے آئیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ قرآن کے الفاظ ہیں وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، شہر کے لوگ جب معلوم ہوا کہ نوجوان خوبصورت لڑکے مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہ آئے، جو ہے شہر کے لوگ خوشی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کتنے بے بس تھے، کتنے مجبور تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، ان هؤلاء ضیفی فلا تضحون، کہ میری قوم کے لوگوں یہ میرے مہمان ہیں، تم مجھے ذلیل نہ کرو ان کے سامنے، واتقوا اللہ ولا تخزون، اے میری قوم کے لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، مجھے ذلیل نہ کرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ ان هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، اے میری قوم کے لوگوں اگر تمہیں اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کرنی ہے، یہ بیٹیاں ہیں ان سے نکاح کرو، یہ خاتون ہیں ان سے نکاح کرو، اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل نہ کرو۔ لیکن جب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی دیکھی، حضرت لوط علیہ السلام کی مجبوری دیکھی، فرشتوں نے کہا لا تخف ولا تحزن، اے لوط ڈرو مت، اے لوط ڈرو مت، غم نہ کرو، ہم انسان نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم ان
हम इनको मजा चखाने के लिए आए हैं, इन्हें अजाब से दोचार करने के लिए आए हैं। इन लोगों ने फितरत को पलटा था। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूरी बस्ती को उठाया, आसमान पर ले गए और वहीं से जमीन पर पलट दिया, वहीं पर जमीन पर पटक दिया। इन लोगों ने फितरत को पलटा था, अल्लाह ताला ने पूरी बस्ती को पलट दिया। जो अहले ईमान थे वो तमाम के तमाम फरिश्तों के कहने पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम उन्हें लेकर बस्ती से निकल गए। बताने का मकसद ये है, जब इंसान गुनाह पर गुनाह करता है, उसके जहन पर, उसके दिमाग पर पर्दे पड़ जाते हैं, उसे एहसास नहीं होता सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें अच्छाई और बुराई के दरमियान तफरीक करने का हुनर दे, अच्छाई और बुराई के दरमियान इम्तियाज करने का हुनर अल्लाह ताला हमें दे, तो हमें नेकी करनी होगी, हमें खैर के काम करने होंगे। क्योंकि इंसान जब गुनाह करता है, जब गुनाहों पे गुनाह करता है, तो एक असर इसका ये भी पड़ता है, इंसान कुंद ज़हन हो जाता है, इंसान का हाफिजा कमजोर हो जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वत्तकुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह, अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करो तो अल्लाह ताला तुम्हें दीन का इल्म देगा। अगर तकवा होगा तो दीन का इल्म मिलेगा, अगर तकवा नहीं, अगर गुनाह होगा तो अल्लाह ताला तुमसे दीन का इल्म छीन लेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकाना, ऐ मोमिनो अगर तुम अल्लाह ताला का डर इख्तियार करो तो अल्लाह ताला तुम्हें फुरकान देगा। फुरकान क्या है? अच्छे और बुरे के दरमियान तफरीक करने का फन, अच्छे और बुरे के दरमियान फर्क और इम्तियाज करने का हुनर अल्लाह ताला, इल्म अल्लाह ताला तुम्हें देगा। सही क्या है, गलत क्या? अगर तुम तकवा इख्तियार करते हो तो अल्लाह ताला इस इल्म से नवाजेगा। इस इल्म की रोशनी में तुम हक और बातिल के दरमियान फर्क कर सकते हो। लेकिन अगर वही इंसान गुनाह करता है तो अल्लाह ताला इंसान को कुंद ज़हन बना देता है, इंसान का हाफिजा कमजोर हो जाता है। देखिए 2वीं सदी हिजरी के बहुत ही जबरदस्त मुहद्दिस इमाम वकी बिन अल जर्राह रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बिन वकी बिन अल जर्राह रहमतुल्लाह अलैह 2वीं सदी हिजरी के बड़े मशहूर मुहद्दिस गुजरे हैं, जिनके हिफ्ज़ के बारे में, जिनके हाफिज़े के बारे में इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने गवाही दी कि मैंने इमाम वकी से बढ़कर हाफिज़े का मालिक किसी को नहीं देखा। गज़ब का हाफिज़ा था इमाम वकी रहमतुल्लाह अलैह का। एक मरतबा किसी शागिर्द ने उनसे पूछा कि अच्छा ये बताओ कि इतना जबरदस्त हाफिज़ा आपको क्यों कर मिला, इतना अजीम हाफिज़ा आपको कैसे मिला? तो इमाम वकी ने फरमाया कि अगर मैं तुम्हें बता दूं न लम तुकद्दवा इस्तेमालतहु, शागिर्द ने पूछा आप कौन सी दवा इस्तेमाल करते हैं कि आपका ज़हन इतना मजबूत है, आप इतने ज़हीन हैं? इमाम वकी ने फरमाया कि अगर मैं तुम्हें बता दूं, वो दवा अगर तुम्हें बताऊं, इस्तेमालतहु, तुम उसे इस्तेमाल करोगे, अमल में लाओगे? ई वल्लाह, इमाम अली इब्नुल खशरम रहमतुल्लाह ने फरमाया कि बिल्कुल अल्लाह की कसम, अगर आप मुझे वो दवा बताते हैं तो मैं वो दवा जरूर इस्तेमाल करूंगा। इमाम वकी ने फरमाया कि तर्कुल मआसी, गुनाहों को छोड़ना, गुनाहों को तर्क करना, मा जर्रबतु मिस्लहु लिल हिफ्ज़, मैंने इससे बेहतर कोई चीज नहीं देखी। अगर हाफिजा मजबूत करना है, अगर ज़हीन और फतीन बनना है तो गुनाहों को छोड़ दो, अल्लाह ताला तुम्हारे हाफिजे को मजबूत करेगा, अल्लाह ताला तुम्हें ज़हीन और फतीन बनाएगा। तो गुनाहों से बचना बहुत जरूरी है। मिसाली इंसान, मिसाली मुसलमान वो है जो गुनाह करने के बाद तौबा करे, गुनाह करने के बाद इस्तिग़फ़ार करे। गुनाह होते हैं इंसान से, लेकिन जब भी हमसे कोई गुनाह हो, गुनाह के बाद फौरन हम नेकी करें। जैसा कि हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के नबी ने वसीयत की कि मुआज़ वत्बइ सय्यतल हसना तमहुहा, ऐ मुआज़ जब भी तुमसे गुनाह हो, जब भी तुमसे कोई खता हो, जब भी अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी हो, तो गुनाह के बाद फौरन नेकी करो। ये नेकी तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगी, नेकी तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगी। जब भी हमसे कोई गुनाह, हम गुनाहगार है, कदम कदम पर गुनाह होते हैं, जिस तरीके से हमसे गुनाह हो जाते हैं, हमें कुल्लियतन गुनाहों से बचना है और गुनाह के बाद हमें नेकी और खैर के काम करने हैं। इसी में हमारे लिए कामयाबी, भलाई और बेहतरी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर छोटे बड़े गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला हम सबको ज्यादा से ज्यादा नेक अमाल अंजाम देने की तौफीक अता फरमा।